Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 115 on environmental studies. Environmental studies is one of the subject of graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session, that is, nature exists not for human being alone, but for all the species. This statement is related to. आपको बताना है ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है. ऑप्शंस आर एनवायरमेंटल एथिक्स, नेचुरल एथिक्स, लाइफ एथिक्स या बोथ ए एंड सी. देखो हमारे पास जो एनवायरमेंटल एथिक्स है उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं. वन इज एंथ्रोपोजेनिक व्यू, अदर इज इकोसेंट्रिक व्यू. So anthropogenic is related to human being. So anthropogenic view में human को as a center रखा हुआ है. So human का highest status है in the environment. और उसमें है कि जो भी कुछ है environment में that is for human only. एक है आपका ecocentric view. Ecocentric view में है कि सिर्फ environment जो भी nature है वो सिर्फ environment के लिए नहीं है. It is for other species also. That is ecocentric. ठीक है. सो जो डेफिनेशन जो आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, नेचर जो है वो एग्जिस्ट करती है सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं बट अदर स्पीशीज के लिए भी. इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एथिक्स. एनवायरमेंटल एथिक्स का ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? दिस इज इकोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? सो मैंने अभी बताया दो पॉइंट ऑफ व्यू है, इकोसेंट्रिक एंड एंथ्रोपोजेनिक. सो it is related to ecocentric point of view of environmental ethics. Clear? So answer is A. Question number 2. Anthropocentric approach says. So anthropocentric is जिसमें अभी बात हुई कि this is like जो human centric है, इसमें human को highest status मिला है in the environment. Clear? So ये approach क्या कहती है? Options are environment need to be protected to safeguard the urban population. हमें environment को protect करना है क्योंकि हमें urban population को बचाना है. Okay. The environment need to be protected to safeguard the interest of the present and future generation of mankind. देखो एंथ्रोपोसेंट्रिक हम अप्रोच की बात कर रहे हैं, हम लोग इकोपोसेंट्रिक की बात नहीं कर रहे, तो इसमें ह्यूमन वर्ड तो आएगा. सो चारों जो ऑप्शंस हैं दे आर रिवॉल्विंग फॉर अराउंड ह्यूमन ओनली. सो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच ये कहती है कि एनवायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन ऑफ मैनकाइंड को सेव करना है. ओके. The environment needs to be protected to safeguard the interest of urban population only. Yeah, D option, environment need to be protected to safeguard the interest of the present generation. So anthropocentric approach, it revolves around human being and ये कहती है कि हमें environment को protect करना है ताकि हम mankind की present and future generation दोनों को ही safeguard कर सके. So correct answer is B. The environment need to be protected to safeguard the interest of present and future generation of mankind. Clear? Answer is B. Moving on to the question number 3, that is, which convention adopted for the protection of ozone layer? Ozone layer, which is in stratosphere, which protect us from harmful UVB radiation. तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कन्वेंशन को अडॉप्ट करा गया in order to protect the ozone layer. Options are वियना कन्वेंशन या बेसल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन. सो करेक्ट आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. स्टॉकहोम हम लोग पहले भी कर चुके. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इट हैपेंड इन 1972. इसका दूसरा नाम यूएन ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट भी इसको हम बोलते हैं और ये 5 जून को स्टार्ट हुई थी. सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. क्लियर? अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें जो कि 1987 में आया था, उसका पर्पस था टू रिड्यूस द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. सो अगर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कम हो जाएंगे तो वो ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करेंगे तो हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो कौन सी कन्वेंशन अडॉप्ट करी गई थी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर? सो दैट वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर Water Prevention and Control of Pollution Act discharges its functions and exercise its power under. So जो CPCB है जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर वाटर एक्ट 1974, वो अपनी फंक्शंस एंड एक्सरसाइजेस
किसके अंडर करता है? ऑप्शंस आर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1972, या एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, या ऑल ऑफ अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। ठीक है, सो इसके सबसेक्शंस हैं इसके अंदर की कौन सी पावर मतलब किसके साथ ये फंक्शन करेगा अलग अलग है। सो वाटर एक्ट के साथ भी है, एयर एक्ट के साथ भी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ भी है। सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। सो सीपीसीबी जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर वाटर एक्ट, बट इट डिस्चार्जेस इट्स फंक्शंस एंड पावर अंडर वाटर एक्ट, एयर एक्ट एज वेल एज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज अर्थ समिट हेल्ड एट रियो डी जेनेरो ब्राजील वाज। सो अर्थ समिट जो 1992 में रियो में हुआ था उसको वो क्या था? ऑप्शंस आर इट वाज द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट। इसका मतलब है क्या वो हैजर्डस वेस्ट का ट्रांस बाउंड्री, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे मूवमेंट को कंट्रोल करना था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हैजर्डस वेस्ट का मूव करना कंट्रोल करना था। इट वाज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, क्या ये UNCED था? इट वाज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, या नन ऑफ अबव। सो अगर मैं सी ऑप्शन पढ़ूं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, ये आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है जो कि 1972 में हुआ था। सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इट वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट जो 1972 में 5 जून को स्टार्ट हुआ था। उसको हम लोग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट भी बोलते हैं। जो अर्थ समिट है दैट इज also known as UNCED, United Nation Conference on Environment and Development. Clear? So answer is B. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners, and we are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there. So mentors will be from your subject area only, and who will be helping you in completing and submitting your assignments. They also will be helping you for your career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.